Welcome for today's session on Menstruation Hygiene Day. First of all, I will introduce about HempStreet. HempStreet एक first organization है, research organization, working on the hemp products, cannabis-based product. आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पे विजया का उल्लेख आता है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, लेकिन आज तक शायद किसी ने क्लासिकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाए थे. And HempStreet is the first company to start this. And we are, apart from that, we are working around the menstruation because its major indication is dysmenorrhea. और एक हेल्दी कॉज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गर्ल्स की एडोलेसेंट एज में या यंग फीमेल्स को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं डिस्मेनोरिया. एंड इसी हफ्ते 28 ऑफ मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है जो कि 2014 से एक जर्मन एनजीओ ने स्टार्ट किया था, एनजीओ नेम्ड वॉश यूनाइटेड इन 2014. तब से ये ग्लोबल लेवल पे मनाया जाता है जिसमें हम हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं. लेकिन ऐसा नीड ही क्यों लगी? बिकॉज अभी भी इस टॉपिक को लेके कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है, खुल के क्लियरली नहीं बोलते हैं पेशेंट्स भी एंड डॉक्टर्स भी. हमारी सोसाइटी में आज भी एक ये हिचकिचाहट है जिसमें मेंस्ट्रुएशन को लेके इतना ओपनली डिस्कशंस नहीं होती थी, जिसके लिए एक अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसी को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल माय स्पीकर्स. वी हैव डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, डॉक्टर रीना अरोड़ा, डॉक्टर आशिमा सरदाना, डॉक्टर रुचि भारद्वाज, Dr. Arun Gupta. We'll listen to them and by the end of all the four speakers, Dr. Arun will conclude about the sessions and by the end of the session, we'll take questions from all the audience. अगर किसी के कोई भी सवाल है, आप chat box में छोड़ सकते हैं. By the end of the presentation, we'll take your questions. I request Dr. Preeti Chhabra to please start with today's session. Dr. Preeti Chhabra is a renowned practitioner of Delhi. She is a consultant at Gangaram Hospital and also senior consultant and at Shri Krishna Institute of Ayurveda at Janakpuri, New Delhi. Welcome, ma'am. Over to Dr. Preeti Chhabra. Thank you, Dr. Pooja, and thank you, HempStreet, for giving me this opportunity to share my views and share a few facts about menstruation from this platform. And the greetings of the day to all the participants. Before we start, we should know the facts right, and that's very important. I'm supposed to talk about menstrual hygiene. So hygiene is a Greek word derived from hygiene, meaning healthy. Although menstrual phenomena is known to date back since 200,000 years, it is only in the 18th century mid that the menstruation was related to ovulation. Today, also in many parts of the country, as in India as well, it is considered as danger, bad omen, curse, taboo, and impurity, as it is related to pain and blood all the time. Menstruation is a taboo, but pregnancy is a celebration. Schools teach this, but only in the academic form. No practicalities are being discussed, and it is very unfortunate to notice that girls are unaware and unprepared for their first periods. The basic facilities are lacking in most parts of the country, so that girls can manage their periods well. Water and hygienic toilets are also lacking. Of course, there's a lot of modification, there's a lot of intervention, but still there's a lot of lacking as well. Menstrual hygiene is a challenge in India. Statistics about menstrual hygiene is alarming. Only 18% of the population has access to sanitary hygiene. Saddening stories about the removal of uterus due to menstrual tract infection in a 12-year-old young girl makes the picture of state clear. Millions of women are not accessing the sanitary napkins just because they're expensive and the cheap options are very low standard. They have very low standard of hygiene. So it's very important to focus on how practically we can maintain hygiene during this state. It's very important to know the basic
personal hygiene is very, very important these days. During these days, bathing should be a daily ritual. One should not skip bathing. Change your sanitary napkins whenever you're going out. Wash the genitalia whenever you use the toilet, even after urination, and dab the area dry. So with the toilet paper and dispose. Don't wash inside the vagina with any soap or any other product. Lack of sanitary protection is the reason of dropout of school in 23% of Indian girls, which is very, very alarming again. Cotton undergarments should be used, which should be changed daily. Stained and soiled undergarments should be changed immediately. Local itching or bad odor should be addressed very effectively. And most importantly, all mothers should teach their young daughters to wipe from front to back so as to prevent infections. One should maintain a calendar. The young girl should be taught how to maintain a calendar or download an app and keep a track. They should be taught to carry a pad in their purses. The area between the thighs should be kept always dry to avoid soreness and chafing. Clean clothes, loose clothes, and breathable cotton clothes, especially the bottom clothing, should be always breathable and loose. Remove wet, sweaty bottom clothing always. Do not hold the urine. This is very, very important. Stasis in the bladder can cause infection. It could be urinary infection or urinary tract infection. The urethra and the vagina are very closely placed anatomically. So the genital and urinary tract infections usually exchange their barriers very easily. Ascending infections are also very common. 80% of women surprisingly use cloth, ash, or even husk for their menstrual protection. But the sanitary pads are the best. There are many other modalities also for using the sanitary pads or the cloth, which is opted for most of the women in India. Cloth should be very soft. It should be washed before use. It should be clean, dried in the sun, preferably ironed and kept in the, it should be stored in a clean and dry place. It shouldn't be rough or thick because it may cause irritation and itching. There should be no sharing because in families where there are many women or many girls, sharing is also seen in Indian system, which should be it should be taught very clearly that sharing should not be there and it should be discarded after multiple use. Don't wait for the complete soakage. Before the complete soakage, it should be immediately replaced by the other one. Sanitary pads are easy for mobility to carry out. They help in routine work and there are less chances of infection. As they are made up of absorbent material, it provides a dry feeling and the use and dispose is comparatively very easy. It should be changed after every 6 to 8 hours in normal flow, but if the cycle is heavy, it can be changed every 3 to 4 hours. Other modalities which are used, which can be tampons. Tampons are good because they give a feeling of good soakage and dryness. But a very, very important thing that toxic syndrome is very common in patients who are using tampons. Then again, menstrual cups are also used, which are siliconized, medically siliconized preparations. And these preparations can last for 5 to 10 years also. These are very hygienic, but the thing is that they have to be washed and stored very properly. How to clean them is has to be taught. And disposal is very, very important. It shouldn't be random because we see that the sanitary pads, napkins, and other accessories are, disposed without thinking what happens after. They should never be disposed unwrapped and badly wrapped. Rag pickers are at risk. Plumbers unclogging the drainage pipes are at risk. And it's embarrassing situations. So please, we should be teaching our masses not to flush the pads. Newspaper bags should be used to dispose in a healthy and environmental friendly manner and waste picker friendly way. They should be always disposed in the waste basket and never should be disposed in open because open disposal may cause a spread of infections like hepatitis B or fungal infection as well. So it's very important
to maintain cleanliness and proper disposal of the whatever is being used. And tampons per se, because they cause toxic shock syndrome, they should be changed very frequently. It so happens that women have been reported to using the tampons, and they forget that the tampon is inside, and they land up into shocks. Using and visiting toilets many times a day should be avoided, and if the pad soakage is proper, it should be changed very often. The cups, as I told you, they should be selected with much precision according to the size of the body structure and according to the flow. If it is mild to moderate, small cups may be used. If it is heavy, bigger cups may be used. They are very, very convenient. But the only thing is that they have to be monitored, and they have to be maintained very nicely. They have to be washed very nicely. Soap bottles should not be used. Either they should be sterilized or they should be put in boiling water for 5 to 10 minutes. And outdoor activities are also very convenient with these menstrual cups. There is no worry of leakage because the suction is proper, and these are very environmental friendly. They reduce the solid waste, and many other benefits are there. So it is most important to take care of the hygiene part, and cleanliness should be observed, and hygienic status should be maintained. And in Ayurveda also we have Rajaswala Paricharya, wherein the behavior, diet, lifestyle, everything has to be monitored as per the need of the patient and as per the requirement. It is a taboo subject, but we all need to open up and address this issue right at the time when it is required. Inability to manage the menstrual hygiene at times hampers education prospects for girls and women also. So it is imperative to maintain the state of hygiene during menstruation and thereafter as well. Thank you for your patient hearing. I sum up with this. थैंक यू डॉक्टर प्रीति छाबड़ा। इससे पहले कि हम अपने अगले स्पीकर की ओर बढ़े, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऑल हैंड्स मीट। ऑल हैंड्स मीट्स एक एनजीओ है जो हमें इस इवेंट को करने में हमारी सहायता कर रही है, जिन्होंने लोगों तक पहुंचाया इस इवेंट के बारे में। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगभग 139 लोग हैं जो कि लास्ट में अपनी क्वेरीज आपसे पूछेंगे। हमारी नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर आशिमा सरदाना। शी सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट। रूट हील्स नाम से उनका गुड़गांव में क्लिनिक है, और वो काफी टाइम से फ्रॉम लास्ट मोर देन 15 years शी इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा। वेलकम टू डॉक्टर आशिमा सरदाना। धन्यवाद डॉक्टर पूजा। थैंक यू एवरीवन एंड गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा जो टॉपिक लेना चाह रही हूँ, थोड़ा इसके बारे में बातचीत करना चाह रही हूँ, चर्चा करना चाह रही हूँ। इट इज अबाउट ईजिंग आवरसेल्व्स आउट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आल्सो कनेक्टिंग इट to the problems, correlating to the problems that I faced, my patients faced, and the questions I faced or the challenges मेरे सामने जो आए कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरा परिवार साथ में था तो क्या क्या हुआ और किस तरह से उसे सुलझाया गया। एक तरह से ये एक छोटा सा सूत्र है जो हाइजीन और फंडामेंटल्स और बहुत सारी जो गूढ़ बातें हैं उनको जोड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड आगे भी इसमें अगर कुछ छूट जाएगा आई एम श्योर हम क्वेश्चन आंसर सेशन और इसमें ले लेंगे, बट लेट्स जनरली टॉक अबाउट पीरियड्स इज व्हाट आई वांट टू से। So basically periods are for nurturing life and not disrupting life. But होता क्या है, हमारा अप्रोच क्या हो गया है अर्बन लाइफ में, there's so much to do that अरे पीरियड्स आने वाले हैं, PMS हो गया एंड अब तो 3-4-5 दिन के लिए लाइफ का बैंड बजने वाला है, डिस्टर्ब होने वाली है। First of all, we have to change that because periods are as natural a system as any other system in our body that we already know by the book. बट हम फिर भी बहुत डर जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम डिसरप्शन वर्ड जैसे मैंने यूज किया तो एक्चुअली हमारी नॉर्मल लाइफ का डिसरप्शन वैसे ही हुआ पड़ा है आजकल।
पैंडेमिक में और लास्ट ईयर से लॉकडाउन कभी हो रहा है, कभी क्या कैसे, एंड लॉकडाउन हैज बिकम सैडली द न्यू नॉर्मल एंड वी आर अडेप्टिंग टू इट विथ थिंग्स लाइक हमारा घर से निकलना बंद हो गया है, हम घर में हैं, हम डरते हैं बाहर निकलने से, सोशल इंटरेक्शन कम है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड वर्क एट होम तो बहुत ही सारा चल रहा है फॉर लेडीज, एंड कभी उसमें उनको हेल्प मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती है। और ये जो डिफिकल्ट टाइम होता है जब हमें एक्चुअली लेडीज को नर्चर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उस समय वो ज्यादा हैसल्ड हो जाते हैं। तो ये हमारी सोशल स्ट्रक्चर की एक रियलिटी है विच इज लिटिल सैड, सो लेट्स ट्राई एंड अटेम्प्ट एंड लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। तो लॉकडाउन हैज बीन अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, कोविड हैज बीन अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड पीरियड टाइम जिसमें डबल काम हो गया, ऊपर से डिबिलिटी एक्सपीरियंस हो रही है लेडीज को, दैट हैज बिकम अ डिस्ट्रेस ऑल्सो। सो मैंने कुछ जो कैटेगरीज देखी, कंप्लेन्स जानने की कोशिश करी जो चैलेंज बन जाती हैं पीरियड्स को मैनेज करने में, वो मैं पहले डिस्कस करूंगी कि there were some ladies who lost track of their menstrual period because you know the discipline was not there, there was no routine। जो लोग घर के एक समय पे चले जाते थे और फिर काम से लौटते थे, there is a rhythm to the life that was absent, and so in so much of heaps of work they lost track कि कौन सा दिन चल रहा है और कितने दिन हो गए और periods नहीं आए। plus there were things like, जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा जून में हमने रेनबो देखी थी, जून में तो लू चलती है, राइट, ऋतु परिवर्तन हो गया, अब हमारे मई में स्टॉर्म्स और बारिश हो रही है। all these things affect our body and body cycles। then there were some ladies who got overtly anxious and started tracking their periods even more than normal because पहले उनको फुर्सत ही नहीं होती थी ये सब करने की, and then that led to anxiety। ओह, उन्हें मुझे पता ही नहीं है कि मेरा साइकिल तो ऐसा था, oh did I have such a short cycle, did I have so much bleeding, did I have such a long cycle, was I going through all of this, because किसी तरह मैनेज करके काम चल रहा था। and then you know they were not able to reach out to doctors, the investigation and diagnostic centers were closed, or they were anxious and fearful of going for those things, only online available था और उसमें definitely कुछ interaction जो है वो सीमित रह जाता है, that was a challenge। third challenge category that I found was adolescents, girls attaining menarche in the lockdown। so एक तरफ से ये अच्छा हुआ कि you know they were in care of the house, they didn't have to go to school or they did not have to miss school really। बड़े लोग थे घर में गाइड करने के लिए, साधन जो भी अवेलेबल थे वो थे हेल्प करने के लिए, फ्लो को मैनेज करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो हमारी बहुत ही प्रगतिशील जनरेशन है आगे की, जो बहुत सारे अमेजिंग सवाल पूछते हैं ये लोग, ये क्वेश्चन करने लगे नानी दादी के नुस्खों को और नानी दादी के जो बिलीव्स हैं जो हमको मिलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मत लगाओ, इस कमरे में मत जाओ, इस चीज को मत छुओ, पूजा मत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। एंड देन दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट मेक्स अ गर्ल स्केयर्ड ऑफ पीरियड्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू वीन ऑफ। एक्चुअली अगर ये लॉजिकल और क्वेश्चनिंग और क्यूरियोसिटी वाली जनरेशन है तो इनको सही ज्ञान दिया जाए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन वीक या कोई भी ऐसा इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम बिलीव्स को इस तरह लेके चलें कि ये हमको नर्चर करने के लिए है तो हमको ज्यादा फायदा होगा। नाउ कमिंग टू कंप्लेंट्स, ये कैसे करना है हम बात करते हैं। कमिंग टू कंप्लेंट्स दैट वी सॉ, या तो पीरियड्स डिलेड थे जैसे मैंने कहा, स्कैंटी थे, मोर पेनफुल थे क्योंकि काम फिजिकल मेंटल इमोशनल बहुत सारा चल रहा था, या किसी को बहुत ब्लीडिंग थी, क्लॉटिंग थी, मैनेज नहीं हो रहा फ्लो और फटीग बहुत ज्यादा है, और पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग है, साइकिल्स शॉर्ट हो गए या इरेटिक ब्लीडिंग है। Then there was more of emotional distress, there were mood swings, there was irritation, and जिनके जो एडोलेसेंट गर्ल्स थे उनका तो मैंने चैलेंज आपको बताया, साथ ही साथ जो पेरीमेनोपॉजल मिडिल एज कैटेगरी है, जो मेनोपॉजल कैटेगरी है, उनके सारे मेनोपॉज के साइंस एंड सिम्टम्स एग्जैजरेट होने लगे।
एक बहुत अनफॉर्चुनेट कैटेगरी और है जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, एंड दैट वाज जहां पे घर में डोमेस्टिक वायलेंस और सोशल अब्यूज रहता है, हैरेसमेंट रहती है एक लेडी को। उनके साथ कोई रिलीफ का हमको तरीका नहीं नजर आया, बिकॉज वो घर में बंद है पूरी फैमिली के साथ, और उसमें इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स उनकी प्रकृति अनुसार हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस रहे, और इसके साथ क्वेरीज आती थी हमको, चाहे ऑनलाइन पे या कैसे। तो कुछ हद तक हम जितनी मदद कर पाए उसमें सबसे पहली जो काउंसलिंग या हेल्प होती है वो ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट that this is a period, this is for nurturing life, this will lead to, you know, later on when you grow up, you have to tell ladies, the girls, the little ladies, that you will become you will start family later as an acceptance, as a gift and not as a taboo. तो सबसे पहला you have to drive this message home. साथ ही साथ इसको, जैसे मैंने कहा कि कंपैशन से और पैम्परिंग से अगर हम डील करें, हमने कोरोना के टाइम में एक इन्फेक्टेड पेशेंट जो कि संपर्क से बीमारी फैलती है उसको आइसोलेट किया, राइट, और उसकी केयर भी करी, थोड़ा डरे भी। लेकिन मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। अगर उन 3-4 दिन में हम थोड़ी केयर, थोड़ा प्यार, थोड़ी पैम्परिंग करें, और जो दादी नानी के बिलीव्स हैं कि मंदिर में मत जाओ, तुलसी को मत छुओ, या कोई ऐसी चीज मत करो जिससे स्ट्रेन हो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उसमें मत हटा के, डोंट्स हटा के, अगर हम डूज बच्चों को, लेडीज को, यंग लेडीज को बताना शुरू करें और बोलें कि तुम्हारे लिए गुड़ और दूध लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए कोकोनट खाना क्यों इम्पोर्टेंट है, तिल खाना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस तरह की दाल चावल, इस तरह का आहार और अच्छा खाना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज गिविंग यू आयरन, इट इज गिविंग यू कैल्शियम, इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन्स ए, ई, जो कि हमारी बॉडी से जब मेंस्ट्रुअल ब्लड पास हो रहा होता है तो हमको डेफिशिएंसी होती है या लो चला जाता है, या हमारी प्रकृति अनुसार जो हमको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया ज्यादा हो रहा होता है, वातज प्रकृति है, या वात प्रकोप के कारण किसी लेडी में है, ज्यादा है, तो उसमें जो स्कैंटी पीरियड्स हैं, ये सब हो रहा होता है, उसको हम आहार से मैनेज करें, विहार से मैनेज करें, आचार से मैनेज करें, प्यार से मैनेज करें। सेकेंडली, जब पित्त रिलेटेड है, द सब्जेक्ट, द लेडी इज एक्सपीरियंसिंग मूड स्विंग्स, उनको शांति दी जाए, उनको पैम्परिंग दी जाए, उनको एक जोन दे दिया जाए दैट बी हैप्पी एंड ईट व्हाट यू वांट टू ईट। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है, पर मुझे बोल दिया गया है कि मीठा नहीं खाना है क्योंकि इससे फ्लो बढ़ जाएगा। सिंपल एक मैं फंडामेंटल एक्सप्लेन करती हूँ, छोटा सा। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट मीठा क्यों नहीं खाना है, मीठे की क्रेविंग हो रही है। सीधी सी बात है, बॉडी को क्रेविंग उस चीज की होती है जिसे उसकी जरूरत होती है। अगर वायु बढ़ी हुई है, ड्राइनेस और इमैसिएटेड लग रहा है, तकलीफ हो रही है, डेफिशिएंट लग रहा है और आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी मीठा मांगेगी। अब जरूरी नहीं है उसको चॉकलेट आइसक्रीम दी जाए, आप उसे हलवा बना के खिला सकते हैं, आप उसे गुड़ का कोई प्रिपरेशन दे सकते हैं, आप उसे मीठे चावल दे सकते हैं विद लिटिल स्पाइस, इलायची, पिपली वगैरह, जिससे कि दोष बैलेंस रहे। एंड अगर किसी को बहुत हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, पित्त प्रकृति है, और द गर्ल सेज, द लेडी सेज कि उफ आई एम फीलिंग सो हॉट एंड ऑल, अब मैं ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकती क्योंकि दादी ने मना कर दिया है, इससे बेटर है आप उनको हल्के ठंडे टॉवल से स्पंजिंग का दीजिए, रोज वाटर का इस्तेमाल कराइए। छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें जो आप खुद से ट्वीक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में हैं, आप उनको ये सारी चीजें बताते हैं, तो वो आपको रोजमर्रा की दिनचर्या में जो दोष बैलेंसिंग चीजें हैं, प्रकृति के अनुसार आपका रजस्राव देखते हुए, मेंस्ट्रुअल फ्लो देखते हुए, ये जो छोटी छोटी टेंडर लव एंड केयर की एक्टिविटीज होती हैं, ये हम कर सकते हैं। अगर बहुत कोई डिप्रेशन में जा रहा है और कफज प्रकृति है, बहुत सिक्लूडेड फील कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो उसकी बॉडी स्वेल कर गई है, उस केस में लाइट एक्सरसाइजेस करने को, एक्टिविटी करने को, बैलेंसिंग बाय
मेकिंग देम स्पाइस्ड, जैसे स्पाइस्ड मिल्क होता है, ठंडी चीजें नहीं देनी है, ये बिलीफ है, घर में कोई देने नहीं देगा दही छाछ वगैरह। तो आप जब उसको पानी दे रहे हैं उसमें थोड़ा स्पाइस करके दीजिए। इलायची, तुलसी, हल्दी हर जगह मौजूद है। हल्दी दूध, हल्दी पानी पीने की तो हम सबको आदत हो गई है, ये सिर्फ पैंडेमिक में नहीं पीना है, ये हम और भी पी सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज बेटर समझ सकते हैं अपने आयुष डॉक्टर से डिस्कस करके। एंड अगेन जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनका बेसिस अगर आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बोला ये गया है कि एक कुटी में, मतलब जो बिल्कुल ट्रेडिशनल नॉलेज है, मैं उसका थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन या एग्जांपल देती हूँ कि एक कुटी में 3 दिन तक रजस्वला स्त्री को आप रख दीजिए और वहां पे उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसको कोई स्ट्रेस नहीं हो, एक्सटर्नली उसको कोई फैक्टर ऐसा नहीं, स्टिमुलस नहीं देना है जिससे कि वो परेशान हो जाए, और उसको खाना आप आराम से पहुंचाइए और उसको तीसरे चौथे दिन बाहर आने दीजिए और फिर उसकी पैम्परिंग करिए। उसको जो टीडियस काम, पहले मंदिर दूर होते थे, रिचुअल्स जो मंदिर में किए जाते हैं उनमें थोड़ी मेहनत लगती थी, तो बोला जाता था तुम मत करो। एक्चुअली भाव ये है कि तुम मत करो, तुम्हारा आराम करने का समय है, लेकिन उसको बोला उस तरह नहीं जाता, उसको एक रिस्ट्रिक्शन की तरह होल्ड करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए एक पावर गेम बना के बोला जाता है। लेकिन अगर आप आजकल के बच्चों को ये बोले कि आपके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं, यू आर नॉट यूज्ड टू देम, दादी तो बोल रही हैं कि आप मत जाइए मंदिर में, आप यहाँ हाथ जोड़िए, आप यहाँ मेडिटेट करिए, आप इस तरह का प्रसाद आपके लिए अलग से बन रहा है, ये खाइए। आई think that is nurture. If we don't give good memories for a child who's just attained menarche, they will keep on carrying that grudge to their adult life. That also causes a long-term stress, leads to the infertility and difficulty in conceiving kind of problems. It leads to stress in other aspects of life. It exaggerates the mood swings. It exaggerates other things that don't let you do activities in daily life, or be shine at your best. Like for example, there are girls who want to go in sports and उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि तुमको पीरियड्स हो रहा है, तुम कोई एक्सरसाइज नहीं करोगी. Whereas I have come across sports people and dancers who say we don't even remember कि हमारे पीरियड्स आए तो हमको अपने रूटीन को फॉलो नहीं करना है. But again, some of them as patients also have discussed with me कि हम रूटीन फॉलो करते हैं, हम डांस टीचर्स हैं, हम पढ़ाते हैं, हम स्पोर्ट्स प्रैक्टिस पे जाते हैं, हम जिम्नास्टिक्स करते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम आती है, बॉडी एक होता है. कुछ बोलते हैं कि हमारे को हीट और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, बॉडी ऑर्डर इतना होता है कि हम स्टूडियो में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या कफज प्रकृति वाले कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमको तो एक्सरसाइज करके पीरियड्स में अच्छा लगता है बिकॉज बॉडी हल्की हो जाती है. Ayurveda is about catering to you as an individual. It is not one size fits all. We can always take history, understand, discuss, and sensitize the patient, the lady, and the family also, even the male members, कि ऐसा हो रहा है, इस समय इनको इम्पोर्टेंस दीजिए, इसी से लाइफ आगे चलनी है, राइट? Some fathers who called me, who be mathematicians, and they called me for problems with their daughters in their menstrual cycles they had begun. And they said, we want them to discuss with you. Please encourage this kind of discussion. Being enclosed in an environment in lockdown, where your brother, uncles actually do come to know that the young girl has attained menarche or the lady of the house is going through some problem. If there is enough sensitivity, there can be sharing of load, there can be help in various ways, and also can be awareness कि इस समय इस लेडी को, चाहे मेनार्के स्टेज पे है, चाहे वो एक्टिव एडल्ट है, चाहे वो मेनोपॉज में पहुंचने वाले आपके बड़े रिलेटिव्स हैं, आंट्स हैं, मदर्स हैं, उनको
उनकी स्थिति को लेके अगर सेंसिटाइजेशन की जाए तो लॉकडाउन इज मोर कंफर्टेबल. वी डोंट नो टिल व्हेन आर वी गोइंग टू फाइट, टिल व्हेन वी विल बी आउट ऑफ, किस समय तक हम रहेंगे इसी स्थिति में और कब तक हम पैंडेमिक को जीत पाएंगे. बट सर्टनली आई फील जब हम लाइफ को नर्चर करने वाली छोटी सी एक फिनोमेना को अप्रिशिएट करके, लिमिटेशन ना बना के, और परिचर्या, रजस्वला परिचर्या जो है, जैसे डॉक्टर प्रीति ने भी मेंशन किया, और आई थिंक डॉक्टर रीना भी आपको आगे आहार के बारे में बताने वाले हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हुए उसे बना के अपनी शक्ति बनाया जाए. It will not be a bad memory or a bad experience, and there will not be any controversies around menstrual leaves and a fight. Why should we be fighting for something that begets life, that carries on the life cycle? It should be as celebrated as the pregnancy. So that these are a few of my points from my side. कि challenges को समझिए लॉकडाउन में, अपनी बॉडी को समझिए. इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हो रही, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी, आप नहीं भाग पा रहे हॉस्पिटल्स में, आप अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए. आप अपनी प्रकृति समझिए, आप दादी नानी के नुस्खे, अपनी प्रकृति और आज के लाइफ में एक ब्रिज, एक सूत्र बनाइए, जो मेरा छोटा सा अटेम्प्ट है बनाने के लिए, और सेंसिटाइज करते हुए खुद को और फैमिली को आगे चलिए. आई होप दैट हेल्प्स. थैंक यू. Thank you, Dr. Ashima, for this wonderful session. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट फ्रॉम मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली. शी इज अ रेगुलर स्पीकर ऑन ऑल इंडिया रेडियो. शी विल बी कवरिंग ऑन डाइट, जो भी आहार की अभी डॉक्टर आशिमा ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं. अब हम चलते हैं आगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना. जो अभी डॉक्टर आशिमा ने बोला, सेम थिंग आई हैव ऑल्सो faced. My daughter is just 12 years, और ये सारे if and buts जो अभी इस जनरेशन में हैं, ये मैंने भी फेस किए हैं, and very well explained by Dr. Ashima. Now I request Dr. रीना आगे के सेशन के लिए, जो हमें एक्सप्लेन करेंगी कि कौन सा आहार लेना है और क्यों लेना है, और कौन सा नहीं लेना और क्यों लेना है. What are the dietary restrictions and what are the features जिनके साथ हम आगे जा सकते हैं. Welcome to Dr. Reena. Thank you Dr. Pooja and Hem Street for inviting me. And आज जैसे कि मुझे टॉपिक दिया गया है आहार विहार, क्या हमें डाइट लेनी चाहिए मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में. मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले ये बताना चाहूँगी. आयुर्वेद में किसी भी बीमारी में अगर हम अपनी डाइट को ठीक कर लें तो 50% ट्रीटमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है. मतलब पेशेंट्स को कई बार ऐसा होता है, अगर मेरे क्लिनिक को आते हैं तो सिर्फ डाइट पूछने की, मैडम मुझे खाना क्या चाहिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए. तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है डाइट की आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली. दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ये एक नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी का. जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, जैसे मोशन पास होता है, स्टूल पास होता है, यूरिन पास होता है, वैसे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. तो अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली पूरी दिनचर्या को फॉलो करेंगे, जो सीजनल रिजीम बताए गए हैं, अब जैसे आजकल समर सीजन है, अब इसमें हमें जो डाइट्स लेनी चाहिए वो थोड़ी सी ठंडी तासीर वाली होनी चाहिए. जैसे घिया, तोरी, टिंडे वगैरह जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, करेले वगैरह, ये सब सब्जियां खानी चाहिए बच्चों को और लेडीज को भी. लेकिन मैंने देखा है कि आजकल की मदर्स भी इस तरह से इतनी पैम्परिंग करती हैं कि जो भी बच्चे बोलें, वो पिज़्ज़ा बोलें या बर्गर बोलें, और ये सब्जी की अगर कटोरी वो साइड पे करें तो वो मान जाती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. इसलिए भी पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा हो रही हैं. डोंट लिसन टू योर चाइल्ड, बी ए स्ट्रिक्ट मदर. आप प्यार कीजिए बट ये प्रॉपर खाना खिलाने के बाद. और दूसरी बात, अब मैं आती हूँ कि आपको एक चीज और, कि अगर पूरा मंथ आप प्रॉपर सीजनल रिजीम के अकॉर्डिंगली डाइट्स लेंगे हर सीजन में, तो पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. और आयुर्वेद में डाइट की जो हमारी प्लेट होती है खाने की, उसमें 6 रस एडवाइस किए गए हैं. मधुर, अम्ल, लवण, यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, कटु, तिक्त, कषाय, यानी स्पाइसी, कड़वा और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है कषाय रस. ये 6 के 6 रस हमारी थाली में होने चाहिए. लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे जो डिमांड करते हैं, एक जंक फूड उन्होंने लिया, कोई बिटर टेस्ट कोई बच्चा नहीं खाता, इवन पेरेंट्स भी नहीं खाते,
वो सब्जियां घर पे लाते ही नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल है शीग्रो, विच इज वेरी हेल्दी, इट्स अ सुपर फूड और वेरी गुड फॉर पीसीओडी और बहुत सारी बीमारियों के लिए। अगर आप उसको खाएंगे तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल साइट कर रही हूँ कि इनको अपनी रूटीन की डाइट में डालिए। रजस्वला की डाइट तो मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ये डाइट्स प्रॉपर लेंगे तो ये जो आगे रजस्वला परिचर्या जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको होंगी ही नहीं। अब जो मेंस्ट्रुअल जिसको पीरियड्स आए होते हैं, जिस गर्ल को या लेडी को, उसको एक वुंडेड पर्सन से कंपेयर करते हैं। जैसे किसी को अगर वुंड हो गया है तो क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम शेड हो रही होती है, तो उसका रख रखाव हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे कोई किसी को एक जख्म हुआ हुआ है। तो एक तो उसकी बहुत केयर करनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर आशिमा ने बहुत अच्छे से बताया कि वाकई उसको पैम्परिंग करनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो डाइट्स हैं, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं देखते कि हमारे पीरियड्स आए हैं, वो सब जंक फूड्स आराम से एंजॉय करते हैं। सिर्फ 3 चीजें आयुर्वेद में एडवाइस की गई हैं मेनली। आप उसमें जौ का दलिया ले सकते हैं, दूध डाल के बना सकते हैं उसको। शाली चावल ले सकते हैं, दूध, देसी घी, ये चीजें एडवाइस्ड हैं। इसके अलावा मैं और 3-4 चीजें बता रही हूँ। आप लाइट सा दलिया ले सकते हैं सब्जियां डाल के, लेकिन जंक फूड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बासी खाना नहीं, बहुत स्पाइसी नहीं, बहुत ज्यादा गार्लिक यूज करते हैं बच्चे, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक पिज्जा, ये सब चीजें एटलीस्ट पीरियड्स में नहीं खानी चाहिए। वैसे समर सीजन में भी नहीं खानी चाहिए, बट पीरियड्स में जो डाइट्स में बता रही हूँ। और एक चीज और, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो शोधन होता है, जो पंचकर्मा में हम करते हैं, उसमें पेशेंट का वैसे ही डाइजेस्टिव फायर कम हुई होती है, अग्निमांद्य बोलते हैं उसको। अगर हम इसमें हैवी डाइट्स लिए तो वो और ज्यादा अग्निमांद्य होगा और उसको प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए लाइट डाइट्स लेनी है। और जो दीपन है, दीपन यानी जो डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करती हैं, और पाचन यानी जो डाइजेस्टिव हमारी डाइजेशन को और इम्प्रूव करती हैं, ऐसी चीजें। दीपन के जैसे कुछ एग्जाम्पल है, हिंगू, हींग आप यूज कर सकते हैं अपनी दाल के तड़के में, हल्का सा उसको डाल सकते हैं। और सेंधव नमक एडवाइस है, और सोंठ भी थोड़ी बहुत आप यूज कर सकते हैं, जिससे पाचन बहुत अच्छा होता है फूड का, और आपके जो पीरियड्स हैं उनका भी फ्लो बेटर होगा। अगर आपको कोई और दिक्कत होती है तो इसको रूटीन में भी आप ले सकते हैं पीरियड्स में। और इसके अलावा अनार बहुत अच्छा है पीरियड्स में, आप उसको लीजिए। लंच से पहले एक अनार आप डेली ले सकते हैं। दूध जरूर लीजिए, खाना देसी घी में बना हुआ खाइए। और एक दो क्वेश्चंस और लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें पीरियड्स में चाय पीनी चाहिए। इसका आंसर ये है, अगर किसी की वायु कुपित हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ी सी चाय सौंफ वाली ले सकता है, पेन्स अगर किसी को ज्यादा होती है। अगर दूसरे एंगल से देखें तो चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत हैं, और जिसको चाय की एडिक्शन है, अगर हम उसको चाय बिल्कुल मना कर दूंगी मैं, तो उसके सिर में दर्द होगा, तो उसको दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप थोड़ी बहुत चाय ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था कि दही खानी चाहिए कि नहीं। दही का भी, आप अगर आपको आदत है बहुत ज्यादा कि आपको दही के बिना आप नहीं रह सकते, तो 4 चीजें हमारी बुक्स में एडवाइस्ड हैं। उसमें आप थोड़ा सा आंवले का पाउडर, या थोड़ी सी शक्कर, या थोड़ा सा देसी घी, या मूंग साबुत दाल का पानी, इसमें से कुछ भी डाल के अगर आप खाना चाहें तो थोड़ी सी दही आप ले सकते हैं। और हल्के मील्स, अब ये मैंने 3-4 चीजें बुलाई हैं, ये सारे शायद नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे मूंग धुली दाल है, मसूर की दाल है, मूंग साबुत दाल है लाइट सी, खिचड़ी, दलिया, घिया, तोरी, टिंडे, ये चीजें देसी घी में बना हुआ खाना अगर आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में लेंगे तो आपको बहुत कम दिक्कत होगी। हर मील के बाद सौंफ लीजिए। और अगर किसी को पेट में दर्द होती है तो वो दूध में थोड़ा सा देसी घी डाल के भी ले सकता है, उससे भी उसको बेटर लगेगा और वायु थोड़ी शांत हो जाएगी जिस वजह से पेन होती है। एक चीज और, जब भी आप खाना खाते हैं, तहे दिल से सम्मान के साथ उस खाने को खाइए, खुशी से खाइए और एंजॉय कीजिए उस मील को, ताकि वो आपको अच्छे से पचे। वो खाना बहुत कम प्रॉब्लम करेगा। और अगर आप बहुत भाग दौड़ में और स्ट्रेस से खाना खाएंगे, तो उससे नेचुरली आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और इसलिए खाना खाने का जो तरीका आयुर्वेद में बताया गया है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। एक चीज और मैं एडवाइस करना चाहूँ, किसी का क्वेश्चन भी आ रहा है पीसीओडी में क्या डाइट्स लेनी चाहिए, कि आप जब खाना खाते हैं तो किसी से आप डाइट चार्ट लेने की बजाय अपनी भूख को देखिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आपकी डाइट डिसाइड करती है आपकी भूख। जितनी आपको भूख है उतना आप खाना खाइए। मान लीजिए आपने किसी डाइटिशियन से डाइट चार्ट लिया, उसने आपको बोला कि आप 4 ब्रेड खाइए, 1 कटोरी दाल लीजिए, प्रोटीन लीजिए, 1 कटोरी फल लीजिए, 1 कटोरी ये लीजिए। आपको भूख एक ब्रेड की भी नहीं है,
आपने वो सारा खाना खा लिया और आपने अपने सिस्टम के ऊपर टॉर्चर कर दिया सिस्टम को बिना भूख के इतना खाना खा के। तो इसलिए जब भी आप मील्स लेते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड पर टाइम में भी और वैसे भी, तो अपने आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना खाना खाना है, जितनी आपको भूख है, और उसमें भी सॉलिड पार्ट्स जो हैं 50% होने चाहिए, लिक्विड पार्ट्स 25% और 25% हमारा पेट खाली रहना चाहिए ताकि हमारा खाना प्रॉपर पच सके, ताकि हम मूवमेंट हो सके खाने की। और जो 6 रस मैंने बताए थे, उसमें 6 रसों का भी एक सीक्वेंस बताया गया है। सबसे पहले मीठा लेना चाहिए। अब कई स्टेट्स में शादियों में भी ऐसे होता है कि मीठा पहले सर्व किया जाता है, तो उसका साइंटिफिक रीज़न है। उससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है और हमारे एंजाइम्स का सिक्रेशन और बेटर होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले मीठा, फिर खट्टा और नमकीन, फिर आप स्पाइसी और आम्ल प्रकार की चीज़ें ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो शायद डॉक्टर पूजा लास्ट में लेंगी, मैं तभी रिप्लाई करना बेटर समझूंगी। इज इट ओके डॉक्टर पूजा? यस डॉक्टर रीना। हाँ, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस नहीं ले रही, वो एंड में आप लेना सारे। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें एडवाइस करना चाहूंगी डाइट के संदर्भ में ही। कुछ लोग सोशल साइट्स को देख के अगर वेट बढ़ जाता है ये जंक फूड्स खाकर, गलत टाइम पे मील लेके, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, कोई रूटीन नहीं है बच्चों का, 5 बजे तक लंच हो रहा होता है, 1-1 2-2 बजे डिनर कर रहे हैं या 11-12 बजे, फिर उसके बाद भूख लगी, फिर रात को मैगी चल रही है, 3-4 बजे सो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आप अपने सिस्टम पे अत्याचार कर रहे हैं, बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं इससे बॉडी में, क्योंकि बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है। तो आप मील क्या लें, ये तो आप जानना चाह रहे हैं, कब लें ये भी ज़रूर जानिए। जो मील के टाइमिंग्स हैं उसको क्रॉस मत कीजिए। लॉकडाउन है या नहीं है, आपको अपना रूटीन खराब नहीं करना, क्योंकि बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है। जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 साढ़े 8, लंच आपका 1 से 2 या 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि पित्ता प्रिडोमिनेंट होता है हमारा उस पीरियड में और हमारा जो पाचन शक्ति होती है वो बेस्ट होती है। अगर हमने उसको क्रॉस कर दिया, मान लो 4 बजे आप लंच कर रहे हैं, वही पेशेंट ज़्यादातर एसिडिटी के पेशेंट्स बन के आते हैं हमारे पास, तो ये ध्यान रखिए। और डिनर जो है वो भी कोशिश कीजिए लाइट डिनर लीजिए और 7 साढ़े 7 से पहले वो हो जाना चाहिए। और यहीं पर मैं अपनी बात को एंड करूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डॉक्टर पूजा एंड में लेंगी। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर रीना अरोड़ा, जिसमें आप और भी हेल्थ के अपडेट्स देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर पूजा एंड हेमस्टी। Thank you, Dr. Reena, for such a informative talk. Now I request our next speaker, Dr. Ruchi Bharadwaj, Senior Ayurveda Consultant, Active Ayu Life, Vikaspuri, New Delhi. Dr. Ruchi Bharadwaj. So I'm here to discuss about the impact of menstrual cycle on our mental health और फिजिकल हेल्थ। सो हम सबको पता है कि जो भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बट उसके साथ साथ फीमेल्स की मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि उन दिनों जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है उससे एक हफ्ता पहले या फिर ड्यूरिंग साइकिल फीमेल्स मूड स्विंग, इरिटेशन, डिप्रेशन या स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, ये कंडीशन फेस करती हैं। सो जिसे हम आम भाषा में या फिर बोलते हैं कि हाँ इसमें पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर फीमेल्स के लिए एक तरह से एक वार्निंग साइन होता है कि हाँ मे बी मुझे इस बार पीरियड्स अभी आने वाले हैं, या इस बार 2-3 दिन पहले आ गए हैं, मुझे ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रही है, मुझे मूड स्विंग हो रहा है। तो हम ये सारी चीजें फेस करते हैं। बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं फीमेल्स में, इसको हम पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी पीएमएस क्या होता है। 90% फीमेल्स पीएमएस फेस करती हैं, जो कि नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट होता है। कहीं ना कहीं 8 to 10% फीमेल्स में ही सीवियर होता है, बट जो माइल्ड टू मॉडरेट होता है 90% फीमेल्स में, वो इजीली मैनेजेबल होता है। उसमें आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट और बाकी कंडीशंस पे अपना ध्यान देना पड़ता है। तो जो मेंटल यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है, उसमें हम क्या चेंजेस फील करते हैं, लाइक मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होती है, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, क्रेविंग्स होती है, या फिर समटाइम्स लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। जैसे फिजिकली जहां हम बोलते हैं कि हमें
फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस फील होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, नोजिया, समटाइम्स फेशियल एक्नेज आ जाते हैं इन दिनों में, और पेन्स आते हैं, बॉडी में पेन्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, बैक पेन ज्यादा इशू करता है, लोअर एब्डोमेन पेन इशू करता है। क्यों करता है उसके बारे में हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हम एक जर्नल पार्ट देखते हैं कि पीएमएस कब होता है। पीएमएस पीरियड से 7 से 10 दिन पहले होता है। उन 7 से 10 दिनों में फीमेल को एक एक्स्ट्रा केयर, एक इमोशनल और फिजिकल एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव होती है कि जर्नल फीमेल का एक साइकिल 28 से 30 दिन तक का नॉर्मल साइकिल होता है। मानो किसी महिला का जो पीरियड्स है वो 1 तारीख को आया, उस दौरान से लेके अगले 14 दिन तक उस महिला में हार्मोन्स यानी कि जनरली एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, और 14वें दिन पे उसका ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडा रिलीज होता है। देन अगले 14वें दिन में हमारा जो हार्मोन्स लेवल है वो वापस डाउन होना शुरू होता है यानी कि हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं। सो वो जो ओव्यूलेशन के बाद का टाइम होता है जिसमें कि हार्मोन्स डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, वहीं से पीएमएस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 7 से 10 दिन का ये जो फेज होता है हर फीमेल्स में, वो ये फेज नॉर्मली जनरली हर फीमेल फेस करती है, बट किसी को फील होता है और किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, या आपकी प्रकृति कैसी है। किसी फीमेल में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। अगर आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टस हम देखते हैं तो हमारे शरीर की 3 मेन बॉडी एनर्जीज होती हैं, वात, पित्त एंड कफ। ये हम सबको पता है, और वही हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स को चलाती है। सो जो वात दोष होता है वो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, वो फीमेल्स के फ्लो को मेंटेन करता है। मतलब जो भी हम यूरिन या हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल रहा है, बॉडी से कोई भी चीज एलिमिनेट हो रही होती है, वो वात दोष की वजह से होती है। सो उसका मेन रोल होता है। सेम अगर हम मॉडर्न साइंस की तरफ जाएंगे तो जो उन दिनों हमारा पीएमएस और हार्मोन्स की अपकमिंग हार्मोन्स जो फ्लक्चुएट होते हैं, वो हमारे ब्रेन के भी हार्मोन्स यानी कि सेरोटोनिन लेवल को भी इफेक्ट करते हैं, जिससे कि मूड स्विंग्स, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स फीमेल्स में होते हैं। सो अब हमें ये सारी कंडीशंस पता चल गई कि आयुर्वेद जो मॉडर्न साइंस ने अब एक्सप्लेन किया है, आयुर्वेद 5000 साल पहले बता चुका है कि वात दोषा इस दिनों में अगर फीमेल का लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, या फिर वात दोषा इन दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में इफेक्टेड होता है, और अगर उसका डाइट भी अच्छा ना हो, लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, तो वो ये चीजें ज्यादा सफर करती हैं। कहीं ना कहीं जब वात दोष डिस्टर्ब होता है और कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, नींद अच्छे से फीमेल्स नहीं लेती हैं, या फिर उनको मोर एंजाइटी होती है, उनको पेन्स होते हैं, प्रिंकिंग पेन्स यानी कि बार बार क्रैम्प्स आना, और इरिटेशन और डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और जब इसके साथ दूसरे दोषा इन्वॉल्व होते हैं तो बाकी चीजें हमारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। लाइक पित्त दोष इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत गुस्सा, एक्ने और रैशेज इन दिनों हो जाते हैं। कफ दोष अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो फीमेल्स सोचती हैं कि बॉडी में हैवीनेस आ गई है, लेजीनेस, फैटिकनेस, थकान उसे बहुत ज्यादा फील होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं पीएमएस में आते हैं। अब आयुर्वेद में यानी कि हमारे शास्त्रों में दिनचर्या बताई गई है, जो कि पहले डॉक्टर आशिमा, प्रीति मैम और रीना मैम ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वो दिनचर्या हमारे वात दोष को पेसिफाई करती है, उसको बैलेंस करती है। उसके साथ साथ कुछ रेमेडीज भी हैं जो कि हमारे वात दोष को बैलेंस करती है, जिससे कि ना सिर्फ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होगा, साथ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी उस दौरान ज्यादा सफर नहीं करेगी। अगर हम पहले से ही उसके अकॉर्डिंग, हमें पता है आयुर्वेद में क्या है कि हर चीज दोष पे काम करती है। अगर हम पहले से उस चीज के अकॉर्डिंग, उस दोष के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल या अपना खान पान ठीक कर ले, तो वो बैलेंस में रहता है, वो प्रॉपर पेसिफाई होता है, उसमें गड़बड़ाहट नहीं आती, तो हमारी बॉडी भी फिजिकल और मेंटल इश्यूज फेस नहीं करती। सो उसमें हर फीमेल को मैं सजेस्ट करूंगी
जनरली जिनको कुछ भी अदर सिस्टमिक इलनेस के इश्यूज ना हो, और जो हमारी टीनेजर्स हैं, एडोलसेंस गर्ल्स हैं, कि अपने डाइट में 2 टीस्पून देसी घी, जो भी होममेड है, प्यूरिफाइड घी है, वो अपनी होलसम पूरे दिन की डाइट में जरूर ऐड करें। साथ ही साथ अगर आपको आयुर्वेदिक बहुत सारे टॉनिक्स आते हैं, स्पेशली दशमूलारिष्ट है, जिसमें कि क्या रहता है कि वो दशमूल वात को पेसिफाई करता है, तो वो अपनी जो भी मदर्स हैं या फिर फीमेल्स हैं, वो अपने रेगुलर एज ए टॉनिक उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द 3 months, और उसके बाद उसको आयुर्वेदा डॉक्टर से पूछ के कुछ टाइम के बाद स्किप कर दें। सो मेक श्योर जो भी आप रेमेडीज फॉलो करें या मेडिसिन लें, वो आयुर्वेदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और उसकी एडवाइस से स्टार्ट करें, बिकॉज दैट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप, योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस तरीके से आप अपनी अगर मेंटल हेल्थ को, अपने हार्मोन्स को या उनको दिनचर्या और अपने डाइट से ही आप मैनेज कर लेते हैं, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आपका जो मेंटल लेवल है या आपकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा सफर नहीं करेगी। बिकॉज आप अपने आसपास बहुत सारी फीमेल्स में देखते हैं कि 2 से 3% फीमेल्स कहती है हमें तो पता भी नहीं चलता हमें कब पीरियड्स आए और कब चले गए। सो वो कहीं ना कहीं उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग है, या फिर वो बात को पेसिफाई करने वाला है। सो मेक श्योर कि लाइफस्टाइल दिनचर्या में क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि जो सनराइज है उसके अकॉर्डिंग हमें उठना है, और सनसेट से पहले हम खाना खाएं और टाइम पे सोएं। और भी दिनचर्या में आयुर्वेद को फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिटेल में जब आप आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा। और बिलीव मी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीसीओडी, इन सब को बहुत अच्छे से मैनेज और ट्रीट आयुर्वेदा बहुत अच्छे से करता है। सिर्फ आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि मेडिसिन, आप सिर्फ डॉक्टर से अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ रेमेडीज भी पूछेंगे तो उससे भी आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं, एक तो वो अपना टीनेजर में जो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है वो फेस कर रही होती हैं, सेकेंडली जो उनको मेनार्की स्टार्ट होता है वो फेस कर रही होती हैं। तो ऐसा क्यों, उस टाइम पे उनके दो वात दोष बहुत एग्रेशन में होते हैं। तो ऐसी जो बच्चियां हैं वे डिस्नोरिया यानी कि ड्यूरिंग साइकिल पेट में बहुत सारे क्रैम्प्स और पेन फेस कर रही होती है, उनका नेचर भी बहुत इरिटेट होता है। उनके पेरेंट्स क्लिनिक पे क्या कंप्लेन लेके आते हैं कि कुछ भी नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, पीरियड्स के दिनों में स्कूल नहीं जाती। सो इनको मेंटल काउंसलिंग के साथ साथ हम कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल पे, यानी कि पेरेंट्स ये ना सोचें कि बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा और भैया इसको तो हम अभी बेड रेस्ट दे देते हैं, इसको साइकिल आ गया, उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस बताओ कि आपको ये लाइफस्टाइल नहीं करना है। इस टाइम पे अगर आप ऐसे रहोगे तो ये चीज क्रोनिक हो जाएगी और ऐसे आपको बाकी एसोसिएट बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर देगी। तो आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना है, उसे समझाना है कि उस टाइम पे आपको कैसे लाइफस्टाइल करना है, कि आपको अपनी डाइट में क्या रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, सनराइज और सनसेट बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है, और भी जितनी भी आपको आपके बच्चे की जो कंडीशन है वो आपको एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट से डिस्कस करके और उसका ऑन टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब जो सेकंड जनरली लोग फेस करते हैं, जो उनको मेंटल इश्यूज और एक टेंशन और डाउट्स रहते हैं, वो रहते हैं हाइजीन को लेके। आजकल जो सोशल मीडिया पे और एडवर्टीजमेंट्स में चल रहा है कि कप्स या टैम्पन्स या वैरायटी ऑफ सैनिटरी पैड्स और उनकी एडवर्टीजमेंट चल रही है, तो फीमेल्स जनरली उनको लेके डाउट में रहती हैं कि हम क्या यूज करें। सो ये सारी चीजें जहाँ पे इनके यूज की बात आती है तो वो फीमेल्स क्या काम कर रही हैं उस पर डिपेंड करता है, और वो भी ये डिपेंड करता है कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं और आपकी जो जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, उन सब चीजों के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। सो जैसे कि मैं जो जनरली अपने पेशेंट में एडवाइस करती हूँ, जितनी फीमेल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहती हैं या फिर कॉर्पोरेट्स के लंबे टूर्स पे रहती हैं और वे टूर्स की वजह से या लॉन्ग ट्रैवल की वजह से पैड्स को, सैनिटरी पैड्स को चेंज नहीं कर सकती हैं और सोशल एक्टिविटीज की वजह से भी नहीं कर सकती हैं, तो उनको मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ कि आप ड्यूरिंग ट्रैवल यू कैन यूज दैट कप। ये सिलिकॉन कप्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे मेडिकल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। सेकेंडली काफी फीमेल्स की कंप्लेंट ये रहती है कि मैम हम सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं बट उनसे हमें लॉन्ग टाइम यूज से ना रैशेस हो जाते हैं जिस दिन हमारा फ्लो ज्यादा होता है। सो इट इज वेरी यूजुअल
टू गेट रैशेस फ्रॉम सैनिटरी पैड्स। कई बार क्या होता है कि ग्लूटल रीजन पे फीमेल्स को बहुत सारे रैशेस होते हैं, रेडनेस होती है, इरिटेशन होते हैं। सो उसमें क्या करना है कि आपको याद है कि और एंशियंट टाइम्स में कपड़ा घर में यूज किया जाता था, बट उसमें कहीं ना कहीं हाइजीनिक कंडीशन हम फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उसकी एक अवेयरनेस को लेके सैनिटरी पैड मार्केट में आए। तो वो क्यों होता था कि फीमेल्स और महिलाएं घर में जेंट्स से अपने पर्सनल कपड़े छुपाती थी, और वे अपने जो भी पैड या कपड़ा वे ड्यूरिंग साइकिल यूज करती थी उनको वो धूप और सूरज की रोशनी नहीं लगाती थी। बट अभी मार्केट में बहुत सारे अच्छे यानी कि नेचुरल बायोडिग्रेडेबल क्लॉथ पैड्स आ गए हैं जो कि बैम्बो स्टिक कॉटन से बने हुए हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर कि उनपे भी आप जो सूरज की किरणें हैं या उनको धूप में अच्छे से सुखाएं और उसको यूज करें। और अब बात आती है कि सैनिटरी पैड को कब कितने दिनों में कितनी देर में चेंज करना चाहिए। सो आपका फ्लो कम हो या ज्यादा, बट 4 to 6 आवर्स में आपको सैनिटरी पैड चेंज करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लो। कई बार कोई भी फीमेल 3 आवर्स से ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कर पाती, बट नॉट मोर देन 6 आवर्स। आपको 6 घंटे से ज्यादा कोई भी सैनिटरी पैड लगा नहीं रहना चाहिए, यानी कि पूरे दिन में आपका 3 से 4 पैड चेंज होने चाहिए। और उसके अलावा जो नेचुरल फाइबर्स लाइक बैम्बो और कॉटन मैंने अभी पहले भी बताया, उसके आप पैड्स यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। और उसको आप सनलाइट में ड्राई कीजिए। सेकंड आता है कप को लेके, सिलिकॉन कप को लेके लोगों को बड़े मिथ होते हैं। वे बोलते हैं कि मैम जो कप है वो कितने आवर्स तक इंसर्ट रखना है, या फिर हम कितने टाइम बाद उसको चेंज कर लें, या उसको कैसे साफ करें। सो जो सिलिकॉन कप्स होते हैं उसको आप 8 to 12 आवर्स, अगर आप लॉन्ग ट्रेवल, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो कॉर्पोरेट में लॉन्ग ट्रेवल्स कर रहे हैं या फिर जो स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमर्स हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है, उसमें हम ये ज्यादा उनको बोलते हैं कि हाँ आप कप्स यूज कर सकते हो। 8 to 12 आवर्स में आप जैसे इसको रिमूव करेंगे तो उसको आपको खाली करना होगा। देन जब आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसको आप जो बॉइल्ड वाटर होता है, गर्म वाटर, उसको गैस पे से उतार कर और कप को 15 से 20 मिनट के लिए उसमें डिप कीजिए। देन उसको साफ क्लॉथ में रैप करके रख सकते हैं अच्छी साफ जगह पे। और उस पर मैं फिर भी प्रेफर ये करती हूँ कि डू नॉट यूज कप मोर देन मतलब ऑल 5 days इन अ साइकिल, उसको आप यूज मत कीजिए। और उसको ना ही आप 24 आवर्स यूज कीजिए। मेक श्योर कि आप नाइट में आप सैनिटरी पैड्स यूज कीजिए, या फिर जो भी आपकी जो लाइनर्स आते हैं, पैंटी लाइनर्स, आप वो यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्या रहता है, बीइंग अ डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट, आई एडवाइज कि हमारा जो जेनेटिकल ट्रैक होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, उसको भी एक्सचेंज ऑफ एयर और प्रॉपर सर्कुलेशन की जरूरत होती है। जो सिलिकॉन कप और टैम्पॉन हम काफी टाइम तक इंसर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन और जो भी उसका एयर ऑफ एक्सचेंज, वहां तक जो एयर जाना होता है वो ब्लॉक होता है। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट नाइट आवर्स में, अगर आपका जो भी जॉब है जिसके भी अकॉर्डिंग है, मैंने पहले भी बताया कि आप कप, टैम्पॉन्स और सैनिटरी पैड ये अकॉर्डिंगली अपनी जॉब और अपने जो भी आपकी हेल्थ को जो फिट करता हो उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि रात में आप यूज ना कीजिए। अब बात आती है टेम्पन्स की। टेम्पन्स को भी 4 to 6 आवर्स तक आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसको आपको जाके स्क्वीज आउट करना होता है और उसको अच्छे से ही आपने डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि अभी आपकी कंडीशन क्या है और आप का जो हेल्थ है वो क्या आपको सूट कर रहा है, कि अब आपका वर्किंग आवर्स कितना है, आप कितनी फ्रिक्वेंटली आप पैड चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है इन सारी चीजों को, मे बी मैं ये सारे डाउट जो कप और सैनिटरी पैड्स और कप्स और टैम्पन्स को लेके हैं मैं क्लियर कर चुकी हूँ। इसके बाद मेन इश्यू आता है कि फीमेल्स में कि नहीं, हमें एंजाइटी इस टाइम पे बहुत होती है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमारा बच्चों से बात करने का मन नहीं करता। अगर आपको ये सिम्टम्स एक्सेस में हो रहे हैं, तो आयुर्वेदा के साथ साथ नो डाउट कि योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्राह्मरी और आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आपको इसमें बहुत रिलीफ देगी। सो ये सारी चीजें आप कीजिए।
और साथ में आपकी साउंड स्लीप, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आप इन दिनों में साउंड स्लीप लीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा फैटिकनेस है तो गो फॉर सम लैब टेस्ट ऑल्सो कि आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बिकॉज इन दिनों में डेफिशिएंसी की वजह से भी पेन और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए अगर सिम्टम्स पीएमएस के बहुत ज्यादा हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये जनरल सिम्टम्स हैं जो कि अभी मैंने बताए हैं, सो इट इज माइल्ड टू मॉडरेट, सो इट इज मैनेजेबल एट होम। सो उसको आप बस अपना ये समझकर कि हाँ इन दिनों में ये होता है, उसको आप योगा, लाइफस्टाइल, डाइट, जो कि पहले डॉक्टर सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एम ओवर। हेलो, नमस्कार मैम। थैंक यू डॉक्टर रुचि, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मुझे लगता है बहुत सारे जो कप्स को लेके और एक सवाल थे, बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं होंगी, उन ऑलरेडी आप आंसर कर चुकी हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। नाउ आई इनवाइट आवर नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर अरुण गुप्ता। नमस्कार डॉक्टर पूजा, नमस्कार मेरे आज के को स्पीकर्स, एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड menstrual health, I'm sorry, menstrual hygiene day, but rather I would prefer to call it as a menstrual health day. So can I have my presentation, Yes, please, or should I share the screen? I can share the screen. Just a minute. पंचर मासात् निष्पच्छादः अर्ति पंचरात्र अनुबंधी च। आज भी हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब लिखते हैं पेशेंट की एज अ गायनेक स्टूडेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, हम इन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि वो मंथली है, इज इट मेंस्ट्रुअल पैटर्न, वो 5 दिन से ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहा, उसमें कुछ डिसफंक्शन, पेन, डिसऑर्डर और डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, हम उस बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज वेरी सेलिब्रेटेड इन, आयुर्वेद ने इसको बहुत सेलिब्रेट किया है और मैं डॉक्टर सरदाना की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इट्स द एनेक्डोट ऑफ जनरेशन नेक्स्ट, ये प्रोडक्टिविटी की बात है मेंस्ट्रुएशन होना, इसीलिए आयुर्वेद में इसको पुष्प कहा गया। इसीलिए पुष्प मीन्स फूल। कौन है जिसको फूलों से प्यार नहीं, फलों से प्यार नहीं, सबको है। प्रकृति का सबसे अनमोल तोहफा है फूल, और उस पुष्प का नाम किसको दिया गया? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऋतु कहा गया। ऋतु क्यों कहा गया? बिकॉज इट्स टाइम, इट्स अ सीजन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स अ सीजन ऑफ रीजेनरेशन। सो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया उपमा, इससे बढ़िया कोरिलेशन, कंपैरिजन किसी और साइंस में दिया गया होगा मेंस्ट्रुएशन को लेकर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मेंस्ट्रुएशन को कहीं और सेलिब्रेट किया जा सकता है। अब डॉक्टर सरदाना ने एक और बात कही कि हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं वो हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, हमारे यंग एडल्ट्स एविडेंस की बात करते हैं। डॉक्टर पूजा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So why menstrual health is so important? Menstrual health is important because it is, ये इसमें बहुत सारे menstrual disorders कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का menstrual cycle जो है वो healthy नहीं है। ऐसे पैरामीटर्स जो आयुर्वेद में दिए गए हैं उनसे हटके है। आप ये कुछ पेपर्स मैंने कोट किए हैं, इसमें आप दे सकते हैं कि इसका प्रेवलेंस, इसका इंसिडेंस, डिस्मेनोरिया 72.6%, मेनोरेजिया 45.7%, मेनोरेजिया एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स 31.7% में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और पेपर, ये तमिलनाडु की स्टडी जो है मैंने कोट की है, डिस्मेनोरिया 70.3%। देखिए ये सब चीजें पॉइंट करती हैं कि व्हाई मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट सो दैट वी कैन प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स। हम एडोलेसेंट्स को मोटिवेट कर सकें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने के लिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स का इतना हाई प्रेवलेंस है, इट इज एज हाई एज 90%। हर 90% औरतों में कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम उनको अक्रॉस देयर मेंस्ट्रुअल लाइफ साइकिल में रहता ही रहता है, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हो, चाहे वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, चाहे वो डिस्मेनोरिया हो, चाहे वो स्कैंटी मेंसेस की बात हो। एंड
most of the menstrual disorders they cause incapacitation. जैसे कि मेरे को स्पीकर्स में से बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती, ऑफिस अटेंड नहीं कर पाती, या ऑफिस में उतनी प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं हो पाती, बिकॉज मेनी ऑफ द गर्ल्स, यंग एडल्ट्स, वो कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, उनके ऊपर टारगेट्स हैं, टाइमलाइन प्रेशर्स हैं, तो incapacitation rate of 15 to 20% in all cases. And जहां menstrual disorders की बात आती है, वहां पे बात आती है बहुत सारे उनको कम्बेट करने के लिए बहुत सारे इरेशनल ड्रग यूज की, चाहे वो पेन किलर्स हों, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों with dangerous side effects. And menstrual disorders. Why menstrual health is important? Because menstrual disorders, they are prodrome for reproductive tract morbidities. वो पहला साइन सिम्टम्स हैं. अगर मेंस्ट्रुएशन हेल्थी नहीं है, हेल्दी पैरामीटर्स उसके नहीं फॉलो हो रहे, तो वो पहला साइन है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम आने ही वाली है. menstrual health is important because menstruation is the basis for other gynecological services, because it is at all related with the reproductive health care. So वही lady जो menstruating है, when she get married, she will come to you for antenatal care. So it is a whole continuum of care built on menstrual cycle. Next slide please. अब हम बात करते हैं ये menstrual disorders, ये होते क्यों हैं. तो इसमें भी मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए, कुछ जर्नल्स को लेके आया, जहां पे ये बात आई कि डिस्मेनोरिया, विच इज अ वेरी कॉमन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, वाज एसोसिएटेड विद ईटिंग जंक फूड. एंड जैसे मेरे से पहले वाले जो मेरे प्रीडिसेसर को स्पीकर थी मैडम भारद्वाज मैडम, उन्होंने आपको बताया कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाज एसोसिएटेड विद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, sedentary lifestyle. Next slide please. And all of these studies which I am quoting, they are Indian studies. Another study from Tamil Nadu, it said that lack of physical activity had greater risk of premenstrual syndrome and dysmenorrhea. Next slide please. It's an Egyptian study, an international study. इसमें भी बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई. फिजिकल एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कॉफी एंड कैफीन, BMI, फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड एंड स्मोकिंग. ये बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या जिसको हम PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कि जैसे मैडम ने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि लड़कियां बात नहीं करना चाहती, इमोशनली डिस्टर्ब रहती हैं, इमोशनली बहुत लेबाइल रहती हैं, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, कमरे में बंद रहती हैं, सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं. सो ऑल इन सब का बेसिस कहाँ है? हमारे लाइफस्टाइल में, जो मेरा आज का टॉपिक है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? तो आयुर्वेद जहां मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स यानी योनि रोगों की बात होती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आर पार्ट ऑफ योनि रोगा, वहां पे वो आयुर्वेद हमें बताता है लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीज, जैसे दुष्ट भोजन इज फास्ट फूड, वेग उद्वर्तन या धारण यानी नेचुरल अर्जेस को कंट्रोल करना, देव इमोशनल डिस्टर्बेंस, मॉरल डिस्टर्बेंस, बीज दोष यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है उस वजह से, विषम स्थान अंग शैल यानी कि अगर आपके पोस्चर में ठीक नहीं है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु वर्क इन कॉर्पोरेट्स और क्लास 10th से लेकर 12th तक, व्हेन दे हैव टू गिव अ लॉट ऑफ सिटिंग व्हाइल रीडिंग, तो पोस्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं. एक पोस्चरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं रहेगी, एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठना पड़ा रहेगा, तो इट कॉजेस पेल्विक कंजेशन व्हिच लीड्स टू मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. भृशम मैथुनम, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, बिकॉज सेक्सुअल लिबरेशन बहुत ज्यादा है आजकल, चाहे वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, चाहे वो हम किसी के इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं. इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिस्टर्ब्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. अपद्रव्य चाहे हम इनको सेक्सुअल टॉयज से कोरिलेट करें, चाहे हम इनको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस से करें. एंड दुष्टार्तव इज
one of its representation is PCOD. ये सब फैक्टर्स हैं जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम थोड़ा समझते हैं आयुर्वेद के फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मासात निष्पिच्छा दाह अर्ति पंचरात्र अनुबंधित नैवति बाहुल्यम नाति अल्पम शुद्धम आदिशे। वही आर्तव शुद्ध है जो हर महीने आता है, जिसमें कोई क्लॉट्स नहीं निकलते, जिसके साथ कोई डिस्कम्फर्ट, पेन ऐसा कुछ नहीं है, जो 3 से 5 रात यानी कि 3 to 5 डेज जिसका अनुबंध रहता है, जो कंटिन्यूस रहता है। नैवति, अगर जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, ये उसका परसेप्शन है कि मेरा फ्लो कैसा है। नैवति, ये फ्लो का परसेप्शन है, वो ज्यादा फ्लो में नहीं है या कम फ्लो में नहीं है, वो हमें पेशेंट बता सकता है, डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता। और ये पेशेंट ही हमें बताता है कि कितना मुझे फ्लो है, और इसी के आधार पे एक डॉक्टर डिसाइड करता है वेदर इट्स अ हेल्दी मेंस्ट्रुएशन और इट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड और कंसल्टेड। अगली बात आ जाती है कि आयुर्वेद में इस ऋतु को, जो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है, इसको अलग अलग दोष के, इसके हर फेज में एक किसी खास दोष की, जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने भी आपको पॉइंट आउट किया कि इसके हर एक फेज में जब मेंस्ट्रुएशन हो रही है उस दौरान वात का तो टाइम है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन इज द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स। वो अगले रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए फॉलिकल्स इकट्ठे कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इसीलिए इसमें न्यूट्रिशन की, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसमें न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। और दूसरी बात ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ये हार्मोन का उतार चढ़ाव किस चीज के ऊपर, ये हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं, बॉडी में बन रहे हैं, लेकिन किस चीज से बन रहे हैं। इस हार्मोन्स बनाने में सबसे बड़ा रोल है हमारे न्यूट्रिशन का, और हमारा लाइफस्टाइल वो सब एक मीडियम प्रोवाइड करता है, वो कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिससे फूड इन हार्मोन्स के रूप में ट्रांसलेट हो जाए। तो इसीलिए डाइट एंड लाइफस्टाइल दे आर द सेवियर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आयुर्वेदा में 3 सपोर्ट्स कही हैं, 3 उपस्तंभ कहे हैं। मेरे बहुत सारे आयुर्वेदिक मित्र जो मेरे साथ आज जुड़े हैं वो जानते हैं, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा यानी कि स्लीप। ये तीनों चीजें हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अफेक्ट करते हैं। आहार, मैंने आपको बताया, आहार इज द रॉ मटेरियल फॉर हार्मोन। आहार इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एंडोमेट्रियम। ब्रह्मचर्य, when we talk of ब्रह्मचर्य, the one thing which comes into our mind, जो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि नहीं संसार से वैराग्य ले लेना। नो, ब्रह्म आचरण इज द बेस्ट आचरण। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ आचार रसायन, दैट इज आपको होलिस्टिक हेल्थ का कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है। इट इज द बैलेंस बिटवीन इमोशनल, साइकोसेक्सुअल एंड पर्सनल हाइजीन। द अदर थिंग, द अदर फैक्टर इज स्लीप हाइजीन। हमारे को स्पीकर्स ने बात की मिनार्की की। मिनार्की कैसे आती है? मिनार्की आने के लिए वी नीड एन इंट्रिकेट बैलेंस ऑफ मेलाटोनिन एंड कॉर्टिसोल। मेलाटोनिन जो है वो हार्मोन है जो स्लीप के दौरान अंधेरे में रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो अर्ली मॉर्निंग हमारे ब्रेन में से निकलता है। तो इन दोनों का बैलेंस यानी कि डे लाइट का एक्सपोजर और नाइट का एक्सपोजर का एक बैलेंस, जब हम सो जाते हैं मेलाटोनिन निकल रहा है, कॉर्टिसोल निकल रहा है, वो एक ऑप्टिमल कंडीशंस बनाते हैं ईस्ट्रोजन निकलने की। वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं और ब्रेन का वो जो मिनार्की वाला स्विच है वो ऑन हो जाता है। सो दिस सेट्स द राइट कंडीशंस जिसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दीज आर सम रिव्यू ऑफ एविडेंस। क्या जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है? हमें स्क्रूटनाइज तो करना पड़ेगा। सो इफेक्ट ऑफ द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ग्लाइसीमिया, यानी कि आप जो कुछ खा रहे हैं, आपका डाइजेशन, खासकर फीमेल बॉडी को भगवान ने इतना डायनेमिक बनाया है
एंड इट इज अट्यून्ड, ये बहुत अट्यून्ड है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके। इस फेज में किस फेज में खासकर जब, सो वन थिंग आई वांट टू एम्फसाइज इज द इंटीग्रेशन। मेंस्ट्रुएशन सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपके यूटरस और वजाइना या जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं हो रहा है, इट इज अ होल बॉडी फिनोमिना, वी हैव टू कंसीड टू इट। और इसके लिए कुछ इंटीग्रेटिव प्रैक्टिसेस चाहिए जो हमें योगा दे सकता है, सो मेंस्ट्रुअल योगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अरुण। अभी मेरे पास इतने सारे सवाल हैं कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू टेक सभी के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला सवाल है मेरा, हाउ पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनोरेजिया? तो PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसमें ऐसा रहता है कि पेल्विक कंजेशन रहती है। जो हमारा जेनिटल ट्रैक्ट है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे सूजन है, तो ब्लड फ्लो वहाँ पे ज्यादा रहता है, विच इज द रीजन। जितना कंजेशन उस जेनिटल ट्रैक्ट में यूटराइन कैविटी में रहेगा उतना ही ब्लड फ्लो आएगा, इसीलिए उसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया रहता है। आई होप आई आंसर्ड इट। एक हमारे स्पीकर पूछ रहे हैं, इफ न्यूली मैरिड कपल सफर्स विद बर्निंग मेंस्ट्रुएशन, ईचिंग एंड फील पेन, तो इसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है? ये यूटीआई की वजह से हो सकता है। इंटरकोर्स के टाइम भी, उससे पहले भी, बाद में भी हाइजीन मेंटेन करें, और जितने भी बाकी इनके वो किसी प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सिर्फ अभी हाइजीन मेंटेन करके देखें, क्योंकि उसी रीजन से इचिंग इनको हो रही है। प्रॉपर वॉश करें पहले भी और बाद में भी। डॉक्टर रीना, आप इसे अगला सवाल है, हमारे एक ऑडियंस ने पूछा है, डाइट फॉर पीसीओडी, स्पेशली क्या अवॉइड करना चाहिए पीसीओडी में? जो पीसीओडी का कारण है बेसिकली जंक फूड्स, इरेगुलर टाइम पे खाना खाना, ये ही अवॉइड करना चाहिए। जो प्रॉपर हमारा घर का खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश फूड्स, वो हम ले सकते हैं। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन स्नैक्स, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, खाली डाइट मत देखिए, ये भी देखिए कि हमें क्या नहीं, कब खाना नहीं खाना है, कुछ ना कुछ फास्टिंग भी इन्वॉल्व कीजिए उसमें, ताकि जो अंदर हमारे डिपॉजिटेड फैट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो भी कुछ हद तक बॉडी से निकल सके। और एक चीज और डॉक्टर पूजा, मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगी, मेरा एक पीसीओडी का आर्टिकल है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर कोई और डिटेल में जानना चाहे तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी डाइट्स और योगा और बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है, और मेरी वेबसाइट है ayurvediclinic.org। थैंक यू डॉक्टर रीना। डॉक्टर प्रीति छाबड़ा से नेक्स्ट सवाल है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम आयुर्वेद में क्या रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत कॉमन है, दैट एग्री टू दैट। क्रैम्प्स जो है वो एक तरह से जो पेल्विक कंजेशन है उसको इंडिकेट करता है, और पेल्विक कंजेशन को रिलीव करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो बहुत इफेक्टिव है। जैसे सिंपल हॉट वाटर बॉटल या थोड़ी अजवाइन को क्रश करके आप गर्म पानी से ले लें, तो ये जो पेल्विक कंजेशन है वो काफी हद तक रिलीज होता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा वात प्रकोप के कारण ये होता है, तो थोड़ा हिंगवाष्टक चूर्ण घी में मिला के या अजमोदादी चूर्ण को हम लें और दाल सब्जी में घी और हींग का छौंक लगा के लें, तो बहुत इफेक्टिवली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर रीना, आपसे ही अगला सवाल है, किसी ने पूछा कि शुड वी अवॉइड एग्स ड्यूरिंग पीरियड, और मिल्क और राइस रिकमेंडेड हैं या नहीं पीरियड्स में? मिल्क और राइस रिकमेंडेड है, मैंने बताया भी था कि आप दूध चावल देसी घी ले सकते हैं। एग्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि उष्ण प्रकृति है, तो पीरियड्स में एटलीस्ट वो ना लें, और समर सीजन में अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली देखें तो थोड़ा सा अवॉइड करें, विंटर्स में प्रेफरेबली ले सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, आपसे मेरा अगला सवाल है, एक पेशेंट पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग कोविड पॉजिटिव जो ट्रीटमेंट है, क्या उसका इम्पैक्ट साइकिल पे हो रहा है? बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है कि डिलेड साइकिल्स हैं आफ्टर कोविड ट्रीटमेंट। ऐसा ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, बट मुझे लगता है ये बहुत सारा मेंटल और साइकोसोमेटिक एंगल है इसमें। बिकॉज ऑफ मेडिकेशन नहीं है, बट क्योंकि इस कोविड की वजह से अनड्यू स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है,
एंड जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स है वो भी डिस्टर्ब है. दैट इज द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. मेडिसिन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसमें नहीं है, बट ये ऑब्जर्वेशन मिल रही है बहुत से पेशेंट्स. थैंक यू. डॉक्टर अरुण, आपसे मेरा अगला सवाल है. एक ऑडियंस जानना चाह रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंट जो ईचिंग है या फिर राइट डिस्चार्ज है आफ्टर पीरियड्स, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? पीरियड्स के दौरान तो वजाइनल डूशिंग यानी कि जो भी वजाइनल वॉश यूज कर रहे हैं वो तो यूज कर नहीं सकते. तो पीरियड के 3 days बिफोर और पीरियड के 3 to 5 days आफ्टर पीरियड जो वजाइनल डिस्चार्ज है इट इज क्वाइट नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा बिकॉज जो यूट्राइन कैविटी है वो अपने आप को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, रिपेयर कर रही है. वो अंदर जख्म है और जख्म जब रिपेयर करेगा तो उसमें से सिक्रीशंस निकलेंगे. सो इट्स नॉट अ कंसर्न. बट आफ्टर पीरियड 5th day, 6th day, they can use tripla churna for vaginal washing. Someone is sleeping actually, and that sounds. अगला मेरा सवाल है डॉक्टर रुचि से. वी वॉश जैसे वेजाइनल क्लेंजिंग है, तो इस तरह से कुछ आयुर्वेद में भी वेजाइनल क्लेंजिंग हमारे पास अवेलेबल है क्या? आयुर्वेद में बहुत इलेबोरेटली वेजाइनल डूशिंग, जिसको हम उत्तरबस्ती या फिर बोलते हैं, उत्तरबस्ती 3 टाइप्स की है. एक वेजाइनल डूशिंग इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ उत्तरबस्ती ओनली. तो उसमें बहुत सारे डूशिंग हैं, बट उनका कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए. वेजाइना को कभी भी सोप वाटर से वैसे मतलब ओवर एंथुसियास्टिकली क्लीन करने की कोशिश ना करें. इट शुड बी क्लीन ओनली एक्सटर्नली with warm water, और at the most आप त्रिफला washes यूज कर सकते हैं. इन पर्टिकुलर कंडीशंस हम हरिद्रा, नीमपत्र, पंचवल्कल, ऐसी बहुत सारी चीजें, स्फटिका जल, ऐसे बहुत कुछ यूज करते हैं. बट दैट हैज टू बी इन पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन. जनरली आपको एज अ रूटीन टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, जस्ट वार्म वाटर वॉश इज गुड इनफ. डोंट गो फॉर एनी वॉशेस which are being marketed. This is my personal opinion. Thank you, Dr. Preeti. Since we are running out of time, so I'll not take all the questions. लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें info@hempstreet.in पे भेज सकते हैं. We'll try to respond you on the same. And thank you all the speakers, and thanks to all Hands Meet organization for supporting us for this event. Thank you all the speakers. Thank you, Dr. Pooja and Hempstreet for inviting us. Hempstreet for the opportunity and the platform. Thank you very much. Thank you, thank you, Thank you, thank you Dr. everyone. Arun. Thank you, Dr. Reena, Dr. Preeti. Thank you, Dr. Ruchi. Thank you, Hempstreet and Thank you. platforms. No It problem. was a great pleasure to be Ma'am, with you, and it was quite informative, and I got my answers that many of my students do ask. It was really, I'm really grateful that you roped me in. Thank you very much. I wish to join in your future sessions. Sure. Arindam Deb from Kolkata. Teacher. Thank you. Thank you, sir.